What is civic sense? Certain behavior like you should not behave in public. Cat calling, Cat calling क्या होता मतलब छेड़ना. है? So चलो ठीक है. Now you have taken a good amount of time in defining the problem. What are the solutions? स्ट्रिक्ट रूल्स तो है बट एक्शन नहीं है. Exactly. क्या ऐसा है that developing या फिर अंडर डेवलप कंट्री का ही ये प्रॉब्लम है और डेवलप्ड कंट्रीज में ही सब साफ सुथरा है? टू रीजन डिपेंड. सब कंट्रीज जो भी डेवलप कंट्रीज है उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम्स है बट कंपैरेटिवली कम है. यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतना है. आप कितने लोगों को समझा तो बैठोगे. अभी सबसे how much is education a problem? वे मेरा भाईंदर में एक ब्रिज बना था, 2 लेन्स था, उसमें से बीच में से रैंडमली 1 लेन कर दिया है वो लोग ने. वो 90 डिग्री पे. तो ऐसा है कि अगर कोई स्पीड पे आएगा भी और अचानक से स्लो करना पड़ेगा तो एक्सीडेंट तो. इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जो रहती है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि मर गया तो मर गया. Well, hi, good morning. After Friday the 13th, yesterday, we are here on the 14th of February, Saturday, with yet another Saturday Charcha. And today we have wonderful creators, I would like to say today. And I would like to introduce them, rather I would request them to introduce themselves, starting with the lady on my right, because she is debuting. Hi, my name is Shruti. I did masters in marketing and looking forward to do a lot of things in marketing as such. Content creator is one of the part and different things in that. Interesting. Harsh. Hi, I'm Harsh Desai and I want to be a graphic designer and I'm working with Akshay Studio for past 4 months. Hi, myself Hetli Joshi. I'm working with Akshar Studio since 1 year and I want to be the best social media manager. Hi, my name is Deo Gilani. I've been working in Akshar Studio since past 2 years and I want to create something crazy. Wow. Nice. The reason we are having this discussion or church is because I need some raw inputs from you guys as to what is happening, and we'll have some discussion which would be sort of an eye opener, or we learn something. I learn something, you learn something like that. So again, I throw this question to you. What are you discussing on today? Civic sense. What is civic sense? Certain behavior like you should not behave in public. Just let's list it down. Throwing garbage. Smoking, publicly smoking. Fair point. Publicly speaking, where you are actually harassing others or standing next to you. Okay. Running behind the ambulance, like finding the way, like. Okay. You're piggybacking on the ambulance and carving out the way. Okay, so nice. Staring someone or which is very uncomfortable for others. Cat calling. Yeah. Cat calling क्या होता है? मतलब छेड़ना. Hmm. Basically. उसको कैट कॉलिंग बोलते हैं. इसको भी ऐसे ग्लैमराइज कर दिया उन्होंने कैट कॉलिंग. और क्या? माइनर्स लोग भी ड्राइव करते हैं अभी तो. रॉन्ग वे ड्राइविंग. और ऊपर से एक्सीडेंट्स भी हुए हैं माइनर्स ने किए हैं बट बिकॉज दे हैव पावर. मतलब उनके फैमिली के पास पावर है सो वो बच जाते हैं. ऑल्सो हाँ, यहाँ इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जो रहती है, लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि मर गया तो मर गया. वैल्यू कम है. सो मतलब ये बुरा है आप बोल रहे हो पर है. तो किसके कंपैरिजन में बुरा है? मतलब अच्छा बुरा इज ऑलवेज रिलेशनल, राइट? देयर हैज टू बी समथिंग गुड टू बी और फॉर समथिंग टू बी बैड. सो यहाँ पे अच्छा क्या है? मतलब किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो इसको? There are other countries which is सिंगापुर एंड वो सब जो कंट्रीज है वहाँ पे ये सब के लिए रूल्स होते हैं. लाइक सिंगापुर को हम लोग फाइन कंट्री भी बुलाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो च्युइंगम के लिए, पब्लिकली स्मोकिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए फाइन है विच पीपल फॉलो एंड दैट्स वाई हम लोग बहुत बार जापान है, सिंगापुर है, ये कंट्रीज हम लोग को कंपेयर करते हैं कि वो लोग कंट्रीज को देखो, उन लोग ने आफ्टर वॉर के बाद उनका कल्चर और सब बहुत ही डेवलप किया है पर हम लोग ने उतना नहीं किया तो हम लोग वहाँ पे बहुत लैक किए. और क्या? जापान में डस्टबिन नहीं है ज़्यादा बट स्टिल द रोड्स आर क्लीन. यहाँ पे डस्टबिन है फिर भी लोग फेंक रहे बाहर किधर भी. डस्टबिन ही टूटे हुए आ गए अभी तो. काफी बार ऐसा हुआ है लाइक फॉरेनर्स जब इंडिया विजिट करने आते हैं वो लोग व्हेन दे शेयर देयर ओपिनियन दे आर लाइक बहुत हर जगह कचरा ही है. लाइक दे आर नॉट फॉलोइंग द बेसिक रूल्स ऑल्सो. जहाँ पे लिखा है यू शुड नॉट स्पिट हियर वहाँ पे ही थूका गया है लोगों ने. लाइक दिस ऑल थिंग्स दे शेयर. यहाँ पे मेंस यूरिनल में भी बहुत प्रॉब्लम है कि मेंस यूरिनल में भी वो लोग पान मसाला थूक के रखते हैं. बल्कि वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे वो लोग ने डस्टबिन भी दिया है, बेसिन भी दिया है बट वहाँ पे नहीं थूकेंगे वो.
लोग यूरिनल्स में थूकेंगे, पूरा क्लॉग हो जाएगा। सो वो सब भी भले वो लोग ने मारा रहेगा वहाँ पे कि भाई डोंट स्पिट, उस पे थूक के रहेंगे। इवन क्राउडेड ट्रेन्स जो रहता है वो भी, कि लोग अभी जैसे देव ने बोला कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है, तो मतलब लोगों में इतना भी सेंस नहीं है कि भाई खुद की जान की परवाह न करते हुए भी इतने गर्दी में से रोज जाते हैं। जो क्लोज डोर भी रहता था उसको भी लटक के लोग जाते हैं। पहले तो ऊपर भी चढ़ के जाते थे, वो भी अभी बंद हुआ है। हाँ, वो तो कम हुआ है क्योंकि पहले बहुत होता था, बट अभी भी लोग नहीं देखते कि भाई ट्रेन छोड़ देता हूँ, अगली ट्रेन पकड़ता हूँ। बट ये तो अभी पॉपुलेशन के हिसाब से, बिकॉज ऐसे ट्रेन देखेंगे तो हर ट्रेन में भीड़ तो रहने ही वाली है। अगर जो वर्किंग आवर्स है उसमें जा रहे हो तो कितनी ट्रेन छोड़ोगे? हैरेसिंग लाइक कैट कॉलिंग। हाँ, बट इवन फॉरेनर्स को आके ये लोग कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज कंपेयरिंग, लाइक वी कैन डायरेक्टली कंपेयर इट। But does it come under the civic sense table? Yeah, yes. Come on, yes. Okay. So, chalo, ठीक है. Now you have taken a good amount of time in, defining the problem, or telling what the problem. But problem per se won't help anyone, right? Talking about the problem. What are the solutions that you think we're good at doing? Strict rules. रूल्स तो है बट एक्शन नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ पे फाइन बोला है नहीं कि है। 2000 फाइन है फॉर स्पिटिंग इन पब्लिक, बट कोई देख ही नहीं रहा। अगर किसी ने देख भी लिया तो थोड़ा बहुत रिश्वत दे के 100-200 हाँ खत्म। बट उसको क्राइम नहीं मानते यहाँ पे। हाँ उससे भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं, वो भी छूट जाते हैं। अभी हरास करना है, वो भी बहुत बड़ा क्राइम। There is no intent per se. ऐसा करना ही है, इंटरेस्ट है वो। और क्या कर सकते हो? कुछ तो रहेगा, कुछ तो कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि स्ट्रिक्टनेस ही बढ़ानी चाहिए, तो लोगों में डर रहेगा। क्योंकि अभी सब लोग हल्के में ले रहे कि हाँ भाई क्या ही कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना जो लॉज दिया है बट एक्शन ही नहीं होता। अभी सबसे how much is education a problem about this one? A lot. क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि स्कूल में या किधर ऐसा सिखा रहे कि यू शुड नॉट हरास पीपल, कि ये एक बुरी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है। कचरा नहीं फेंकना चाहिए वो तो सिखाते थे, बट ये सब चीज़ नहीं सिखाते थे। तो अपने ब्रेन को भी उतना पता नहीं चलता था कि इसको हरासिंग बोलते। तो ये सब जब छोटे रहते तभी सिखा देते हैं तो बेटर रहता है कि लोगों को पता चलता है कि बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम उनको सिखाया भी नहीं जाता कि ये गलत है। सो पेरेंट्स हो गया या कोई भी वो बात को दबा देता है कि लाइक हाँ हो गया, सो लाइक हाउ टू सेव दैट पर्सन फॉर नाउ rather than हाँ। मान लेते। So अभी इसको सही करने के लिए क्या कर सकते? Implementation of what? रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। अगर वो लोग ने फाइन रखा है वो लोग को भी नोट करना चाहिए कि कौन थूक रहा है, क्या हो रहा है। ऑफिसर्स रखने चाहिए एरियाज में पर्टिकुलर देखने के लिए। जैसे कि अभी वो लोग ने किया है स्ट्रिक्ट रूल्स, रात को पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस फॉर द सेफ्टी, तो वो अच्छी बात हुई है। बट ये सब भी चीज़ों में भी करना चाहिए कि भाई किधर उधर भी कचरा नहीं करे। इंटरेस्टिंग। आपके साइड से? सेम द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ओनली, क्योंकि वही सबसे मस्त चीज़ है। क्योंकि रूल्स वगैरह तो मतलब सब कुछ है, बट जब तक हम लोग सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लग रहा कि आके लोग सुधरेंगे। ऑफिसर शुड बी लॉयल टू देम, लाइक कि फाइन लेना चाहिए और रिश्वत नहीं लेनी। इंटेंट होना चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। वो इंटरेस्टिंग, राइट? बट वो चलो और एक सवाल पूछता आपको, क्या ऐसा है दैट डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्री का ही ये प्रॉब्लम है और डेवलप कंट्रीज में ही सब साफ सुथरा है? रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। सब कंट्रीज जो भी डेवलप कंट्रीज है उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम्स है। कुछ पर्टिकुलर रीजन एरिया में जाओगे आप तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है। चाइना, स्विट्जरलैंड, वहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जहाँ पे पब्लिक एरियाज। बट इन जनरल वैसे बट कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतना है, अब कितने लोगों को समझा तो बैठोगे? ऐसा नहीं है, समझना तो सिंपल। अभी अब आज के दिन में मेट्रो पे जाओ, मुझे वहाँ पे हार्डली थूका हुआ लग रहा है, दिखता है कि कोई पान थूक के जा रहा है या फिर गंदगी फेंक रहा है कहीं ना कहीं। वो तो सब बराबर चल रहा है। वहाँ पे पहले से ही वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया था ना कि ऐसे ही जाना है। वहाँ पे भी क्राउड तो उतना ही है। हाँ, बट
वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही था, ये पहले से ही यहाँ पे वो ऐसा एक सोच हो जाता है कि यहाँ पे यहाँ पे चलता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये अपना एरिया है, यहाँ पे चल जाएगा। बताओ बताओ बताओ, क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मतलब लोकल ट्रेन सालों से चल रहा है, बट अभी सिमिलरली वही ट्रैक पे अगर एसी ट्रेन आ रहा है, लोग लाइन में खड़े हैं एंटर होने के लिए। सो दैट इज पहले से एसी ट्रेन आया तो दिमाग में बैठाया हुआ था कि कि यहाँ पे शिद्दत से चढ़ना है। अच्छी ट्रेन आ रही है। मतलब बोले हैं कि मतलब कन्वर्ट करना आसान है, अगर आप कोई सिस्टम लेके आओ तो कन्वर्ट करना आसान है। जैसे इन्होंने बोला अच्छी ट्रेन है तो वैसे कर, अभी सेकंडली चलो मॉल में आप जाओ, मॉल में आपके हाथ में कचरा है तो भी आप नीचे फेंकोगे? नहीं, हम लोग नहीं फेंकेंगे, बट कुछ लोग फेंकेंगे। हाँ वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, कैसा क्राउड है। अगर वहाँ पे क्राउड वैसा है जो वैसे ही रहते हैं बचपन से कि किधर भी कचरा फेंक दो, तो उन लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोग पर आपने देखा है किसी को फेंकते हुए? अच्छा, और बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मेजोरिटी में रहता है ना, बहुत सारी भीड़ रहती है। तो ठीक है, वैसे भी हुआ तो अथॉरिटीज आके तुरंत साफ कर देती है उसको, वो तो होता है। तो वैसा हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। नहीं, वो तो फिर वो फेंकते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, वो तो कंटिन्यूस लूप में चलते रहेगा। लूप होल है ये, ठीक है। तो बाहर भी वही होता है, रोड्स में भी, कि ये फेंकेगा तो ये कल साफ कर देगा, मैं फेंकूंगा तो कल साफ। आपको बोलना सही है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट साफ भी करना जरूरी है ना। हाँ, वो तो जरूरी है, बट सिखाना भी जरूरी है कि कहाँ कचरा फेंक। चल ठीक है, तो सिखाने के लिए क्या करते मे बी सोल्यूशन ये हो सकता है कि किसी ने लिटर किया, हम उनको बोल रहे कि क्यों किया और उठाओ। अगर नहीं भी उठा रहे देन वी आर सीइंग, हम लोग निकल जा रहे, वी आर नॉट पिकिंग इट अप। खुद से नहीं उठा रहे हो, मेरा काम नहीं है ऐसा। अगर किसी को बोल रहा है और वो लोग नहीं उठा रहे तो वी शुड पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द बिन इन फ्रंट ऑफ देम। सो नेक्स्ट टाइम वापस 2-3 बार होगा, बट एट सम पॉइंट उनको भी तो समझेगा कि लाइक दिस वाज नॉट टू बी डन। बट जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। आप किसी को बोलोगे कि इसको डस्टबिन में फेंको, दे विल बी लाइक माइंड योर ओन बिजनेस। दिस इज द एग्जैक्टली थिंग व्हिच वी लिसन फ्रॉम देम। तो किसी को कितना भी समझा लो, आप उनके सामने फेंक भी दोगे चीज तो वो लोग जा रही है, फेंक देगा, मैं जा रहा हूँ। उसके लिए करना क्या चाहिए? पहले चलो कचरा उठाना कचरा उठाना ये बुरा क्यों माना जाता है? सबसे पहले एक ये सिर्फ इंडिया में ही है फॉर सम रीजन, कि हम चाहते हैं कि हमारा कचरा और कोई उठाए, एक मेरा और कोई साफ करे। एक false sense of entitlement. There is sort of a colonial upbringing that we all had, कि हमारा काम कोई और करेगा। हम right? जैसे काफ़ी अब्रॉड में देयर आर स्कूल जहाँ पे बच्चों के पास सिर्फ साफ सफाई करवाते हैं, हाँ, उनके बर्तन खुद धोते हैं ये लोग। सो उन मतलब वो इट्स लाइक ए नॉर्मल थिंग दैट दे आर डूइंग। मतलब ठीक है, कचरा है, फेंकना है। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? कल उठ के चलो आपको कोई बोले, आपका दोस्त फ़ोन करेगा कि यहाँ पे क्लीन अप ड्राइव है, हमारी गली पूरी खराब है, तो क्या हम मिलके साफ कर सकते हैं? आप लोग में से दिल से, अभी तो सब हाँ बोलेंगे, बट दिल से कितने लोग जाएंगे वहाँ पे? फ्रेंड तो हाय बोलेंगे। फ्रेंड नहीं है, चलो रैंडमली आपके पास एक इश्तिहार आया आर्टिकल में कि कल हम लोग एक क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं, दिल से कितने लोग जाएंगे? तो ये आपको शुरुआत करने के लिए कौन रोक? Why don't you take the first step? वो मेरे एरिया का अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे एरिया में मुझे कोई इतना जानता भी नहीं है कि मैं शुरू करूँ तो मेरे पीछे लोग आए। अरे पर आपको लोग तो से अब शुरू तो करो। वैसे तो देखने जाए तो हमारे घर का बाहर तो कचरा वैसे भी मतलब नॉर्मल जो पब्लिक रोड। अब एक सिंपल चीज़ मुझे बताओ, एक ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट हमारी म्यूनिसिपैलिटी इतने टाइम से बता रही है, कितने लोग इसे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं? बट इन द एंड जब ये ट्रक आता है तो वो लोग एक में डालते हुए देख। नहीं, पर ठीक है ना, आप कितने टाइम से कर रहे हो? कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। तो उसकी अवेयरनेस क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं? कैन वी मेक लाइक अ रोड मैप ऑफ व्हाट डू वी? अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, बट जैसा श्रुति ने बोला कि वो एक ही जगह सेग्रीगेट हो। नहीं वो ठीक है ना, वो भी उनसे भी बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज पहले हम सब सेग्रीगेट करें, देन उनके पास आए, उनके पास भी पैरेलली बात कर। मुझे तो लग रहा है पहले ये सब चीजें स्कूल्स में भी स्टार्ट करनी चाहिए, तो फिर जाके आगे का जनरेशन। नहीं पर इसको टाइम ले। वो जनरेशन के पहुंचने के पहले इधर सब रहना भी चाहिए। हमारे बिल्डिंग में हुआ था, दे गेव अस 2 डस्टबिन्स, वो लोग नहीं दिया ग्रीन और ब्लू।
और सेग्रीगेट करके ही डालने का, एंड इफ वी डोंट पुट तो वो लोग लेके भी नहीं जाएंगे, देन वी हैव टू गो डाउन एंड थ्रो दैट बिन. तो इवेंचुअली एवरीवन स्टार्टेड टू सेग्रीगेट थिंग्स. बट बाद में वो लोग ही एक जगह पे के चले जा रहे हैं. चलो ठीक है, फेयर पॉइंट. तो उसमें वी कुड इम्प्रोवाइज इट, पर अपने एंड से हम क्या कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट वी आर मेकिंग श्योर दैट थिंग्स आर क्लीन, थिंग्स आर गुड, एंड देन वी empathize or sympathize with others and make sure what is happening. एक चीज़ हो गया. Second, of course, rules are very important and strict implementation of that rules is also equally important. अगर आपने कहा स्विट्जरलैंड है या सिंगापुर है या दुबई है, वहाँ पे आप जाओ and you break laws, then the fines are really strict and they make sure that it is implemented well as well. अगर आप वहाँ पे गलती से रास्ता भी क्रॉस कर दो, यहाँ पे हम स्टाइल में ऐसे रास्ता क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पे अगर आप वो कर दो तो सामने कोई ना कोई आएगा और that crossing would be too hefty on your pocket. वैसे हो सकता है, तो यहाँ पे वैसा क्या कर सकते हैं हम? इट इज डिफिकल्ट बिकॉज जब भी ग्रीन सिग्नल कार्स के लिए रहेगा तभी रोड क्रॉस करते हैं लोग. हाँ, यहाँ पे कैसा है, जेब्रा क्रॉसिंग बना के रखा है बट गाड़ी उसके ऊपर खड़ी रहे, तो दे डोंट नो कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रोकना है. कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, या फिर आपका जो डायरेक्शन है उसके ऊपर किसी का बैनर छप जाएगा, समथिंग लाइक दैट. वो भी होता है ना. यहाँ पे लोगों को पता है कि कैमरास किधर किधर है, दैट टाइम दे लोअर देयर स्पीड और वो लोग रूल्स फॉलो करेंगे. वो तो नॉर्मल है ना, पर यार बराबर नहीं. हाँ, वो नॉर्मल बना दिया है ना, तो ये भी नॉर्मल बना सकते हैं, ये भी नॉर्मल ही चीज है, बट लोगों ने उसको उतना वैल्यू नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया. बट चलो ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन, इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई एक, चलो तो हम लोग कचरे के लिए तो हमने बात किया, लेट्स गेट इन टुगेदर. इनफैक्ट देयर इज अ रूल एज वेल कि जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, जो आपके चिप्स के पैकेट बना रहे हैं या फिर पानी की बोतलें बना रहे हैं, they are responsible to recycle. Once I was talking to a friend of mine, not a friend but an acquaintance, जो प्लास्टिक के इंडस्ट्री में थे, बट he said that you'll be astonished to know that 90% of the plastic is recycled. आपको जो कचरा दिखेगा उसमें प्लास्टिक की बोतल हार्डली रहेगी, वो कोई ना कोई रैक पिकर लेके ही जाते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट. So we need someone who will sit down and understand that how do we segregate this entire thing and कैसे इसको कम कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस दैट कचरा उठाना मेरा काम नहीं है. जो कचरा उठाता है वो थोड़ा मुझसे इंफीरियर है, ये है वो है. ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको मेरे हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए. मेरी भी इतनी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर वो उठा रहा है तो मुझसे सुपीरियर है बिकॉज ही इज मेकिंग श्योर दैट माई सराउंडिंग एंड माई एनवायरमेंट इज क्लीन. We should actually, come together and felicitate the gentlemen or ladies who make sure that such a thing is happening. Because ये हम कभी नहीं कर सकते and they are doing it on our behalf. So we need to truly value them. तभी जाके उन्हें अच्छा लगेगा अंदर से और वो शायद 2 काम ज़्यादा करें. And we need to raise our hands up and make sure that these cleanup drives happen day in and day out. So शायद we motivate others. We need to go and approach schools and उन्हें बोलते हैं दैट आप वीक में एक बार लेट्स स्टार्ट इट, तो बच्चों के अंदर इनवाइब हो जाइए. आई अंडरस्टैंड बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है, बट कोशिश करने में क्या आते हैं, राइट? रास्ते पे आते हैं. रास्ते पे क्या कर सकते हैं? रास्ते को पहले तो ठीक कर सकते हैं. रास्ते पे चलने के लिए जगह चाहिए हमें. फुटपाथ चाहिए, और गवर्नमेंट तो हर 5-5, 10-10 दिन में खोद के रख देती है. फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है. जो रास्ता पहले ठीक था वो खोदने के बाद वापस वो लोग ने रिपेयर किया तो और बिगड़ गया. और बिगड़ गई, उसके लिए वापस खोदेंगे. फिर भूल गए कि अरे पाइपलाइन तो डाला नहीं, तो फिर से खोदेंगे, पाइपलाइन डालें. सो ये सब डिफिकल्टी है अंडरस्टैंड. उसके लिए तो चलो बट ठीक है, बट बेसिक क्या कर सकते हैं? फुटपाथ चाहिए. फुटपाथ पर भी फूड स्टॉल्स रहेंगे, लोग हाँ, फिर ट्रैफिक के बाद लोग वहां से बाइक लेके जाएंगे, उन लोग को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, भले बाकी लोग ट्रैफिक में रहे. अभी फुटपाथ ऑलरेडी इतना छोटा है, रोड इतना बड़ा, रोड में ट्रैफिक है, तो बाइक वाले फुटपाथ पे से लेके जाएंगे, और तुम अगर कुछ बोलोगे तो वो हम लोग को और सुनेंगे. वो अपना रास्ता खुद बना रहा है ऐसे. इसके लिए हम लोग को नवी मुंबई से थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए. मुंबई को तो क्या है नई मुंबई में ऐसा? नवी मुंबई में फुटपाथ तो क्लीन रहता है, तो फुटपाथ पे ऐसे अननेसेसरी जो बैठे हुए रहता है ना, वो भी नहीं देखे मैंने कभी. तो और फुटपाथ पे भी जो बाइक वाला सीट, वो तो होना चाहिए रहा वहाँ.
वहाँ पे होता है वो सब जगह होता है। थिंग वैसे, या जो यहाँ पे रेगुलरली होता है पर वहाँ पे कभी कभार। ओके, एटलीस्ट लाइक फुटपाथ भी क्लीन ही नहीं होता है, वहाँ पे भी चलते वक्त ऐसा लगता है कि कहाँ पे चल रहा है। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि नवी मुंबई से हम लोग को सीखनी चाहिए। फुटपाथ सीधा नहीं रहता है यहाँ पे। फुटपाथ और रोड सीधा नहीं रहती। पोस्टर वाइज रहता है। अभी इधर से सीधा सीधा चल रहा है, अचानक में छोटा हो गया, वो टूटा हुआ फुटपाथ है, गटर टूटा हुआ है, मतलब फिर अभी क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। एकदम एडवेंचर है रास्ता पे चलना भी। दिस इज जो मुंबई रिलेटेड आई वुड लाइक टू से प्रॉब्लम, बिकॉज वो इज नॉट अ प्लान स्ट्रक्चर पूरा एकदम वीक लगता है मुझे, कि कुछ भी कैसे भी, वो नहीं, बच्चे को आप हाथ में ड्रॉ करने के लिए बोलते हो कि ड्रॉ करो, तो कैसे कुछ भी बना देते हैं। तो ये ऐसे ही मुझे लग रहा है किसी बच्चे को दे दिया और कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया है। अभी मीरा भाईंदर में एक ब्रिज बना था क्या है उसमें? और मतलब 4 लेन्स 2 लेन्स था, उसमें से बीच में से रैंडमली 1 लेन कर दिया है वो लोग ने। वो 90 डिग्री पे, तो ऐसा है कि अगर कोई स्पीड पे आएगा भी और अचानक से स्लो करना पड़ेगा तो एक्सीडेंट पक्का है। तो वरना टेक ऑफ हो जाएगा। तो इतना खर्चा करके टैक्स लेके सब करके वो लोग बना रहे, बट गवर्नमेंट ही ऐसा बना रहा है। So there has to be a political intent. That is what town planning is a very important thing. प्लानिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, रास्ता कैसे जाएगा, कितना बड़ा रास्ता चाहिए आपको, फेरी वाले के लिए भी अलग जगह रहता है, गार्डन्स चाहिए, गार्डन्स अल्टीमेटली है नहीं इसलिए लोग चल के जा रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स चाहिए जहाँ पे हम साइकिल करके लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली ये नई मुंबई इज़ अ वेल प्लान सिटी, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, तो प्लानिंग इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम इन दिस सिटी, बट इसे अच्छी तरीके से मुंबई स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई। स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम पे लोग यहाँ पे बहुत कुछ अगर साउथ बॉम्बे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे प्लान किया था, कैसे बनाया। अभी भी सब बिल्डिंग्स वैसे के वैसे ही है, और वो लोग ने प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया था। आप देखोगे ना तो बहुत स्पेस है वहाँ पे फुटपाथ भी सब बराबर है, स्पेस भी बहुत, और बिल्डिंग्स भी सब मस्त डिजाइन किया हुआ है। प्रॉपर इंटेंट, वैसे हम बोल रहे हो, अगर इंटेंट है तो सब कुछ हो सकता अभी ये सब पूरा मुंबई चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल बिजी रहता है ना पूरे टाइम। अभी आप कितने टाइम तक एक रोड बंद रहे? अभी अभी आपके हिसाब से कितना काम चालू है आप? अभी यहीं पे ब्रिज बन रहा है, वो तो 2 साल से बनते आ रहा है। तो ज़्यादा बट ठीक है, और बन रहा है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर कुछ करना है तो पीपल आर डाउट। बंदे की बात करते हैं, रातों रात किसी को एटीएम यूज़ करना नहीं आता था वो आ गया, किसी को यूपीआई यूज़ करना नहीं आता था वो आ गया। व्हेन वी हैड कोविड तो लोगों को अचानक इंटरनेट यूज़ करना आ गया। जूम मीटिंग क्या होती थी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव नेवर यूज्ड अ फोन, they were also well versed with what was happening. So human mind is easy to adapt. अगर आप सिचुएशन ऐसा पैदा कर दो तो अडेप्टेशन तो सिंपल है, बट देन अगेन इट ऑल ड्रॉज डाउन टू द इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द बिगर पिक्चर। छोटे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, बट देन हमारे आसपास में साफ सफाई रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं दैट ये इम्पोर्टेंट है, एंड respectfully ask people to make sure that you aren't disturbing others. एक अगेन एक ऐसा चीज़ है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, there's a false sense of entitlement। मैं रास्ता चलाता हूँ तो ये रास्ता मेरा है, ये रास्ता हमारा है। You need to respect the other gentleman, the lady who is in front of you। शायद उसे 2 मिनट लगेंगे तो हॉर्न मत मारो, रुक जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहुँचने में 2 मिनट देरी होगी, अगर आप लेट निकले हो तो आपकी गलती है, उसकी गलती तो है नहीं। So you need to make sure that such empathetic रेड सिग्नल्स पे भी हॉर्न मारते रहते वो लोग, जैसे कि, बट वो पूरा ट्रैफिक रहता है एकदम पैक्ड रहता है, उसमें हॉर्न मार रहे, वो एकदम पैक्ड, जैसे कि वो 2 मिनट में किधर पहुंच भी नहीं जाने वाला है वो, क्योंकि आगे जाएगा तो आगे पैक ही है। मुझे लगा उसने कुछ किया तो सही, वरना बैठे बैठे क्या करेगा। बट अगेन एज आई सेड, you need to make sure that there are others around you as well and you aren't disturbing them। ये मैसेज अगर सही तरीके से उन्हें कम्युनिकेट हो पाए तो आई फील प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सही दिक्कत है। ईगो है सब में, कि नहीं मैं ही हूँ। आई नो, बट वो कहीं ना कहीं देखो, द प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल, बट we require the citizen, the government and everyone to come together and make sure that such implementations are happening, wherein you respect each other to start with, because अगर आप ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके पब्लिक प्लेस पे ही होता है। घर के अंदर you have set your rules,
वहाँ पे वैसा प्रॉब्लम होना डिफिकल्ट है। एक बिल्डिंग में आप जाओ तो वहाँ पे रूल सेट होते हैं, लॉबी साफ होनी चाहिए, है वो है, आवाज़ करना अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पे रूल सेट हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज मोर और लेस ऑन द पब्लिक प्लेस एरिया होंगी, यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, एंड दिस हैपेंस बोथ द वेज। सिटीजन भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, इतने जवाबदार है जितने बाकी लोग हैं। ये हो सकता है, तो इट इज़ सिंपल। अगर आप किसी आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में गए आप, मैंने जान अब यूट्यूब करना है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इट इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज वहाँ पे साफ सफाई उन्हें ही करनी है रोज। दे आर ट्रेन्ड वेल, they are trained really well to make sure that things are in order and it is clean and everything is happening nicely. People are following the rules over there because नहीं करोगे तो फिर डंडा पड़ेगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी वो कर दे तो people are easy to adopt, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। इंडियंस आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल पीपल, आप कुछ भी करो हो जाएगा। और मुंबई में तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, अब रास्ता खोद दो फिर भी वो कुछ भी करके ऑफिस पहुँचेगा। वो तो है। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन का इंटेंट है तो कर सकते हैं। Now, what can we do? I would request you if we could have like a white paper of problems and tentative solutions. Let's send it across, मेल कर देते हैं गवर्नमेंट को या म्यूनिसिपालिटी को, कुछ तो होएगा। कुछ नहीं हुआ तो हमें तो सेटिस्फेक्शन है कि हमने हमारा एंड किया रादर देन हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता ये है। करता है। मैं बोला ट्राइड, यस वी कैन। कुछ ना कुछ तो होएगा। लाइफ में क्या है ना, कंप्लेनिंग इज वेरी इजी, बट eventually you need to sit down and understand what can be done. मैं वो सोल्यूशन ढूंढना बहुत कम लोग कर सकते हैं ना, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। और आपने कहा ना मैं अकेला ही रहूंगा, तो कोशिश करो, उसमें क्या है। मैं वो आने के लिए एक आदमी काफी है। बट अगर आपको करना है एंड यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स, राइट, यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मुझे अच्छा लग रहा है करने में, मुझे और कोई क्यों चाहिए। और वो देख के वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। इवेंचुअली दिस इज व्हाट वी फील, बट कुछ नहीं हुआ देन टू यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी, राइट? कैन वी डू इट? यस। Perfect. Anything else? No. I think start with firstly respect others, especially people who are cleaning your surroundings. They are the ones who need to be respected the most. Because वो काम कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें तुच्छ गिनते हैं, बट इवेंचुअली दे आर मेकिंग श्योर दैट थिंग्स आर राइट, राइट। और कुछ चलो, तो नेक्स्ट सैटरडे व्हेन वी मीट, लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। मैं बोला लेट्स टॉक ऑन सॉल्यूशंस, क्या कर सकते हैं। This was truly an insightful discussion that we had, and this was truly an emotional discussion that we had because they were so emotionally involved while they were talking, because ये लोग डे इन एंड डे आउट ये फील कर रहे हैं, and this is the first hand feedback that they were sharing. But eventually, as I said, let's focus on solution. Definitely there is the brighter day that is waiting for us, and we'll make sure that we bring it earlier. So yeah, thank you so much, and let's hope to have such wonderful and insightful conversations in the time to come. Perfect. Thank you.